My name is Preeti Sharma, and I'm the proud community member of MDC. So let me give you my brief introduction. That I am, full-time working professionals. I'm heading HR in an Ayurveda organization, and it's been 15 years. I'm, heading this department. Not heading, actually, in a human resource profession, and I'm staying in Delhi NCR, Faridabad, with my two kids, my twins. They both are manifested. It's really very important to mention. And my husband, we both are, taking care of my two kids. Wow. And um, so this is my brief introduction. Yes, Shilpa, you can ask me anything. Yes. Yeah. So, Preeti, first of all, super warm welcome to the Hall of Fame interview. I'm so proud of you, of what you have achieved. I'm not going to tell everything now. You are going to share what happened, what made you join MDC, what emotions, what feelings you were going through, what was your life before that. So, give us a brief on that. So yeah, I try to keep it more precise because there are so many things I have experienced so far in my journey. So my journey has started in 2021, and prior to that, it was in COVID when I saw your first post on $1 million morning. That's how, because this was also my desire to wake up early in the morning, but I could not make it. That's how I joined your community, and after that, I took 4 5 months, maybe I think longer, join your Rise and Shine. So Rise and Shine, I have joined after seeing so many, stories, your success stories with your clients. And one of these stories you were telling, कि भी जब भी आपको ये, दिख रही है post, maybe universe is giving you some message. So that was striking me so hard कि शायद ये post मुझे किसी reason से दिख रही है. And after that, during that period, I was also, planning having a baby. वो COVID का time था, थोड़ा सा lean period था. I thought this is the right time. But I was just thinking कि पता नहीं, again वो limited mindset we had कि कैसे होगा, क्या होगा. You do not remember, Shilpa, but I have messaged you. And that time I think you were accessing number direct, you were directly interacting with your clients. तो मैंने ऐसे आपको एक innocently message भेजा कि भी I am planning my family, कैसे होगा possible ये rise and shine करना, मेरा job भी है. So you have sent a very beautiful message. I was just waiting for that push, a positive push, and you gave me that positive push, and thank God I have enrolled for Rise and Shine. It was completely a recorded program, but you can sense that energy. It's just that if you really want to sense that energy. So that whole program was so beautiful. That whole program made me feel so positive, confident, and I could address my limited beliefs. कि मैं मेरा सबसे पहला जो हडल था वो यही था कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, और इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग में करती थी. प्लस आई वाज नॉट एबल टू कंसीव, और उसका क्या रीजन है मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. राइज एंड शाइन साथ में चल रहा है, मेरा ट्रीटमेंट साथ में चल रहा है, मेरी जॉब साथ में चल रही है. तो अभी मैं पूरा स्टोरी आई कांट एक्सप्लेन यू, जस्ट लॉन्ग द कट द स्टोरी शॉर्ट कि पहला तो वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना मेरी कि भाई जो भी आएगा मे बी समथिंग इज देयर, यूनिवर्स जो भी देगा अच्छा ही देगा. तो आई रेड दैट न्यूज, दैट रिपोर्ट रॉन्गली. उसमें मुझे लगा कि नहीं हो पाया, बट आई वाज सो थैंकफुल टू यूनिवर्स कि ठीक है जो भी कुछ अच्छा ही होने वाला है. उसके थोड़ी देर के बाद व्हेन आई सेंड दैट रिपोर्ट टू माय गायनी, तो शी सेड कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है. एंड Oh. आई या. So after 10 years of my marriage, वो सुन के I was just shocked because I was the one who was just एक तरस रही थी सुनने के लिए कि आई एम प्रेग्नेंट. मतलब मैं इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट थी अपनी जर्नी से कि बस मुझे भगवान प्रेग्नेंट कर दो. आई वांट दैट साइन कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, एंड इट वाज नॉट हैपनिंग फॉर लास्ट 10 years. और फिर जब उन्होंने कहा आपकी मल्टीपल ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो मैंने पहले तो फोन रखा, मैंने कहा आई कॉल यू आफ्टर 5 minutes. एंड देन मैंने कहा आर यू श्योर, कहते हैं आपकी रिपोर्ट देखो इट्स सुपर गुड. फिर मतलब फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो क्योंकि पहले हस्बैंड ने रिपोर्ट देखी थी, वाज आल्सो लिटिल डिसअपॉइंटेड. और यू वुड नॉट बिलीव, मेरी पहली प्रिस्क्रिप्शन का पहला वर्ड था कि यू हैव टू हैव अ कंप्लीट बेड रेस्ट. ठीक है. आई वाज आई थिंक 36 एट दैट टाइम, तो मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं था, मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है. मल्टीपल प्रेगनेंसी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, प्रीशियस प्रेगनेंसी. तो वो फिर बट स्टिल दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट प्रोटेक्शन, वो जो यूनिवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, आई थॉरली अंडरस्टूड दैट कि समबडी इज देयर टू प्रोटेक्ट मी. सो माय हस्बैंड टोल्ड मी कि भाई तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है तो तुम करो. एंड आई थिंक इट इज रियली मिराकुलस कि पूरे 9 months मैंने एक भी लीव नहीं लिया है. मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, और पूरा 9 months में ऑफिस गई. और आई वाज इट वाज अ हेल्दी डिलीवरी, माय बेबीज वर हेल्दी. फिर मेरा पूरा पोस्टपार्टम, एंड मुझे पता नहीं कहाँ से वो इतनी एनर्जी आ गई. आई हैव जॉइंड माय ऑफिस इन 54 days. Oh my God. Wow. Superb.
and my office people were also surprised कि तुम थोड़ा और रेस्ट ले लो. तो I joined my office, again I blessed with so many good people around me, and this was one of my affirmation that I'm supported with loved and supported people. तो हमेशा मुझे वैसे ही लोग दिखते हैं लाइफ में. तो वो मैंने पहले 3 hours के लिए 4 hours के लिए, that's how I joined this thing. उसके बाद again I wanted to change my job, कि भैया बच्चे हो गए, बिकॉज मैं थोड़ा उनके लिए भी वेट कर रही थी क्योंकि इतनी लंबी जॉब है, कैसे हो पाएगा. देन again I got a confidence कि भाई मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है. Then I started giving interview. I manifested certain number. It was unreasonable maybe for someone, but again your desire is just like a dot in entire universe. That's how I started कि I deserve this. I have to negotiate what I deserve. तो मैंने एक नंबर मैनिफेस्ट किया कि ये मेरे ऑफर लेटर में होना चाहिए. दैट्स हाउ और फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिटेन कर लिया विद दैट नंबर, एंड आई डिड नॉट बिलीव इट वाज अ 45% हाइक. Oh my God, crazy. In fact, when I was scouting job, तो 3 months ही हुए थे मेरी प्रेगनेंसी को. 3 महीने के बच्चे छोड़ के पता नहीं मुझे क्या जोश आया कि मैं नई जॉब ढूंढने निकली. वो तो बाय गॉड ग्रेस, बाय यूनिवर्स एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स. वो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही, उन्होंने मुझे बोला वी वुड नॉट लेट यू गो एंड यू विल बी देयर, विल मेक यू एवरीथिंग. आप जितना आपको चाहिए बोलो, आप पोजीशन भी लो. एंड आई कैंट बिलीव दैट. मतलब जब मैं सुन रही थी, अभी तो मुझे बोलने में इतना ज्यादा इजी लग रहा है, बट उस समय इट वाज लाइक मैं घर आके 5 मिनट सो, इट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. पहले तो मेरे ट्विंस, यू वुड नॉट बिलीव शिल्पा, आई डोंट नो आपने तो, आपको शायद नहीं कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, बट इतने साल के बाद आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी, दैट टू बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, इट वाज होल अगेन. मैं आपको बताने लगूंगी तो आपको एक और 20 मिनट लग जाएंगे. बट माई किड्स आर ऑल्सो मैनिफेस्टेड. हाउ आई डिड होप उन बोनो throughout my pregnancy journey. I feel like how my babies are in my hands, my baby boy, baby girl. It was super amazing. कितना मिले ना मिले बात की बात है, but अभी let me enjoy that feeling. और ऑपरेशन थिएटर में भी लास्ट, जब तक मुझे डॉक्टर ने बताया नहीं, तब तक आई वाज जस्ट affirming, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी हेल्दी बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल. सो इट वाज सुपर अमेजिंग. और जब उन्होंने बोला कि यू हैव अ बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, योर फैमिली कंप्लीटेड, अगेन अ वेरी शॉकिंग सरप्राइज कि ये कंप्लीट हो गया मेरा. Amazing, beautiful. Yes. So you conceived and you got amazing retention, 45% hike, and job was going. Then what happened? Then ये coach बनने का ख्याल कैसे आया? तो अगेन वो मेरी जो पूरी एनर्जी थी, दैट वाज डबल्ड अप कि भाई जॉब अच्छा चल रहा है, अभी मुझे नेटफ्लिक्स पे अननेसेसरी इंस्टा पे सोशल में टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो आई फेल्ट कि मैं और बहुत अच्छा कर सकती हूँ. आई वांट टू, ये जो मैंने एनर्जी इकट्ठी करी, मुझे किसी को तो पास ऑन करनी है. तो आई वाज एक्सप्लोरिंग कपल ऑफ थिंग, क्योंकि आई एम फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स बैकग्राउंड. आई थॉट आई कैन स्पीक वेल, सो आई शुड ट्राई समथिंग वेयर आई कैन यूज माई कम्युनिकेशन स्किल्स. तो मैंने कुछ 1-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करे. आई स्पेंड अ डिसेंट अमाउंट, बट इट डिड नॉट वर्क आउट. ठीक है, एक तो मैंने छोटे और प्रोग्राम्स भी किए थे, दैट वाज प्रीटी वेल, बट वो इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कि मैं उसे कोई नया प्रोफेशन शुरू करूं, इट वाज नॉट हैपनिंग. तो साइड हसल मुझे कुछ करना है, इट वाज देयर, एंड आई वाज एक ये बोलते ना, यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन. आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय इंट्यूशन, इधर से उधर, उधर से इधर, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी. तो मुझे एमडीसी कोचिंग भी दिख रहा था बहुत टाइम से, बट आई वाज लाइक कि 9 to 5 जॉब के साथ, छोटे बच्चों के साथ एकदम नया प्रोफेशन शुरू करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट पता नहीं, फिर एक दिन मुझे वही मैं आपका वेबिनार नहीं अटेंड कर पा रही थी. अगेन 3 hours का वेबिनार, टाइम ही नहीं होता करने का. बट द बेस्ट पार्ट इज यू ऑलवेज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग. तो वो जो वेबिनार था, वो रात को मैंने शायद 10 बजे सुनना शुरू किया होगा. उसको सुनते सुनते धीरे धीरे करके, बिकॉज बच्चे भी जगे हुए थे, 1-1:30 बज गया. तो वो शाम को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतना सीड हो गया. अगले दिन आई बुक्ड फॉर क्लैरिटी कॉल. पहले मैंने आपकी टीम मेंबर से बात करी, फिर देन आई टॉक टू शुश. फिर शुश ने मुझे काफी, अगेन मेरे को ना थोड़ा सा एक पुश चाहिए होता पॉजिटिव, कि मैं जो सुनना चाहती हूँ मुझे कोई बोल दे एक्सपर्ट. तो शी वाज सेइंग कि भाई ये आपका एक लिमिटेड बिलीफ है कि आपको पुराना नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा. तो प्लीज अगर आपको आना है तो पहले बर्निंग गोल करो, अपनी एनर्जी क्लीन करो, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आओ यहाँ पे. अगर आप ये सोचोगे कि पहले नहीं वर्क हुआ अभी भी नहीं होगा, तो फिर वो एनर्जी यहाँ पे भी आएगी. तो दैट्स हाउ फिर मैंने एक्चुअल में बर्निंग गोल किया. मैंने एक्चुअल में सारी थॉट्स लिखी कि क्या. फिर देन वन थिंग इज ऑलवेज इन माई माइंड. जब हमारी इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हुआ था, तो आई थॉट, आई टोल्ड यू कि I was in that particular mindset कि if I want to achieve something different in my life, I have to do something different. So this is something different I want to do. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. एंड मैंने इस पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अपनी एफडी एक करवा रखी थी, वो मैंने ब्रेक की. और फिर मुझे लगा 4-5 years के बाद, यार ये पैसा मुझे इतना मैटर करेगा क्या. ठीक है, लेट्स गिव अ शॉट. जब मैंने आपको फर्स्ट पेमेंट करी, आई वाज दिस इज माय अफर्मेशन दैट आई एम अ मनी मैग्नेट. I am going to double this amount very soon, and that's how अरेगा तो मनी करके I just paid you my first installment. और पता नहीं उस पूरे दौरान ही कुछ और पेमेंट्स थी जो मुझे करनी थी, बट कैसे वो मनी एनर्जी आ गई और मुझे फिर वो दूसरा पैसा अपने आप ही अरेंज हो गया. आई डिड नॉट नो हाउ, मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा वो कैलकुलेशन कैसे हुई. और लास्ट की मैंने आपको बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस के दे दी. सो इट इज ऑल बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिटरमाइंड हो, सो देयर आर एनर्जी अराउंड यू प्रोटेक्टिंग यू.
और वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर देगी. यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. सो आई टुक दैट फर्स्ट स्टेप विद सुपर कॉन्फिडेंस विदाउट एनी कंफ्यूजन कि नहीं, आई हैव टू डू दिस. ठीक है. सो इट वाज लाइक दैट. Wow, and then that's how your journey began because you thought कि इतनी energy है, I want to pass it on. I don't want to waste my time on Netflix or social media. Let me learn something, have a new skill, and also pass on to people, bring more meaning and purpose to my life. And that's how you started your MDC. तो अब बताओ, mom of twins, 9 to 5 job, फिर MDC complete कैसे किया? Time कैसे मिला? Was the sessions like comfortable for you? Timing ठीक था? या recording पे किया? क्या किया? कैसे complete किया? तो सबसे पहले तो आई दिस इज अ हाई टाइम एंड अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू थैंक माय हस्बैंड, बिकॉज यू नो ओनली मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ आर मैनेजिंग दिस फैमिली. और ये शायद पता नहीं पूरा जो मैं इनर वर्क करती हूँ उसका फायदा क्या है, बट बिफोर यू नो वी वर नॉट हैविंग किड, छोटी छोटी बातों पे इतने झगड़े हो जाते थे बिना किसी बात के, कोई मतलब नहीं होता था. और मैं सोचते थे यार इस पे इतना बड़ा झगड़ा करने की क्या जरूरत थी. आई डोंट नो, थोड़ा मैं इवॉल्व हुई और वो हस्बैंड के पास एनर्जी गई या वो वैसी विजडम उनमें, आई डोंट नो, बट ही इज माई बिगेस्ट चीयर लीडर. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं बोलने लगूंगी तो फिर अगेन ये पूरा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा. तो यू नो आई कुड नॉट इवन टेक अ सिंगल स्टेप विदाउट हिज सपोर्ट. इज दैट यू नो आई एम ब्लेस्ड विद सुपर अमेजिंग एंड लवली एंड लविंग एंड सपोर्टेड हस्बैंड. और इसी वजह से मैं आज भी बैठे हुए, मेरे हस्बैंड इज विद माई किड्स. ये 1 से 3 का टाइम मेरे बच्चे सोने का होता है, ही इज विद हिम विद माई किड्स एंड आई एम यू नो गिविंग दिस इंटरव्यू. तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता बिकॉज ही इज देयर टू सपोर्ट मी. आई कैन टेल यू हाउ मच ही सपोर्ट मी, बट आई फील सो ब्लेस्ड. मुझे शायद मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स और मेरे हस्बैंड, आई डोंट नो कहाँ से मिला है, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू द पीपल अराउंड मी. एंड अब नाउ यू एंड शुश, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली. Oh wow, that's so amazing. So you are saying with your husband's support, you could attend the session, master classes जो होती हैं once a week या once in 15 days, many times. So you were able to complete and you were able to do the assignments. Now in that MDC journey, what are the changes? What are the transformation you saw when you saw your personality assessment, base values, your D codes, E codes, goal, power steps, baking the cake, CTFAR? तो आपके अंदर क्या हो रहा था? Change, transformation क्या आ रहा था? Right. So because of that whole thing, फॉर्चुनेटली सारे सेशन संडे को अलाइन थे. संडे मुझे, हालांकि मैं संडे को थोड़ा लेट उठना पसंद करती हूँ, बट अगेन आई लव टू बी कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन. 7 बजे उठ के मेरा एक भी सेशन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखा. सारे के सारे सेशन लाइव थे. अगर कभी रिकॉर्डिंग देखी होगी तो थर्सडे वाला सेशन होगा, वो भी मैं कई बार लगा के कान में रखती थी ऑन एंड ऑफ. आई रियली लव द कॉन्वर्सेशन वर हैविंग 2-3 घंटे चलती थी, बट पता नहीं लगता था. शुभा मुझे बोलती थी शुरू में, वो मैंने कहा यार हम इतने लंबे कैसे कर पाएंगे, कुछ टू द पॉइंट करो यार, हमारे पास टाइम नहीं है. पर जब मैंने एक बार अटेंड किया तो आई टोल्ड शुभा की, शुभा इज अ सिस्टर कोच बाय द वे, दोज हु डू नॉट नो, बट शुभा इज अमेजिंग. और बहुत उन्होंने मुझे छोटे छोटे टिप्स दिए हैं फॉर माय क्लैरिटी कॉल. बहुत पेशेंटली उन्होंने मुझे टाइम दिया है. तो ये पूरा मैंने अगेन, दिस इज ऑल कॉन्स्पायरिंग बाय यूनिवर्स की मुझे बिल्कुल एकदम ईज में हुआ. मैंने कभी स्ट्रेस किसी असाइनमेंट का नहीं लिया. यू कैन आस्क शुभा, कभी उन्होंने मुझे फॉलो अप नहीं करना पड़ा. तो आई एम वही कॉन्फिडेंस बैक टू बैक हो रहा है. आई वाज थिंकिंग पता नहीं कैसे होगा, और वो इतना फ्लॉलेस हो गया कि मुझे सीरियसली नहीं पता चला. एंड व्हेन इट कम्स टू डिस्कवरिंग थिंग्स, तो ईच स्टेप इज सुपर अमेजिंग. यू नो अब मुझे समझ में आया कि भाई यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, बट वो ज्ञान एक्चुअली में स्ट्रक्चर्ड नहीं है. एंड एवरीबडी नीड्स दैट स्ट्रक्चर. सो दिस होल प्रोग्राम इज अ सुपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. और जैसे मेरे को बहुत छोटी छोटी बातें वो वेबिनार की भी याद है, व्हेन यू से कि आपको एकदम जैसे ना सीसीडी की कॉफी की तरह रेडी मिलेगा, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट. इट वाज दैट पावरफुल एंड दैट इजी. तो इसमें वैल्यूज वाला मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड यू नो ever since I have learned that value thing, तो मैं हर जगह बोलती हूँ this is my value, this is not my value. So that's how my conversation is evolved with my seniors also, office में भी. In fact, this coaching profession taught me that business concept, business acumen also, जो कि मेरे में पहले नहीं था. तो मैं जब ऑफिस में भी बात करती हूँ तो आई टॉक अबाउट नंबर्स, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस, एसओपीज, और जल्दी से मुझे चीजें समझ में आ जाती हैं. मे बी बिकॉज ऑफ दिस होल प्रोसेस, क्योंकि इसमें भी काफी डायनेमिक्स आपको देखने होते हैं व्हेन यू बिकम यू नो मेक कोचिंग एज अ प्रोफेशन और एज अ बिजनेस. फिर उसमें डी कोड का इट वाज अगेन वेरी डीप डाउन. आपको बहुत सारी चीजें अंदर की पता लगती हैं. मैंने मतलब मुझे तो रोना ही बहुत, आई एम वेरी इमोशनल. अभी भी मुझे था, दैट वाज यू नो माय इनर वर्क. आई ऑलवेज डू माय इनर वर्क कि मैं रोऊंगी नहीं किसी कहीं पर भी इमोशनल नहीं होना मुझे. तो वो पूरी सेल्फ डिस्कवरी वाज सुपर पावरफुल, सुपर अमेजिंग. फिर उसमें डी कोड है, वैल्यूज है, केक बेकिंग, रोड मैप. सी हु डज दिस, कि अपने सामने वो क्लैरिटी है, क्या आपके वैल्यूज हैं, क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, क्या आपके एफर्मेशंस है, क्या आपका पीस प्री शो ऑफ थॉट्स हैं. मतलब कोई नहीं करता ये. दिस इज समथिंग व्हिच मेक यू स्पेशल बाय यू नो दिस एमडीसी प्रोग्राम. and the right challenges, क्या challenges आ सकते हैं, उसको overcome कैसे करेंगे? Smell the challenge. See how amazing this word is. Smell the challenge and be ready for that.
Wow, superb. So that's how you were discovering yourself, and you were also using unconsciously or consciously in your corporate life also all these that you were learning inside these concepts of MDC, you were applying it in your corporate life, and that's why that's also showed a good result over there, right? So now you completed, you certified. Now what happened? How do you get clients? Okay, you are in the Hall of Fame interview because you have crossed 1 lakh income as a coach or a healer. So congratulations for that, and tell us how did you get your first client, or how do you show up on social media, and what do you do? How do you help people with who are listening to you? Maybe they will reach out to you. So again, I would say consistency is the key. So this was in my mind. और ठीक है मेरा कॉर्पोरेट भी चल रहा है तो मुझे भी ऐसे पैसों का बहुत स्ट्रेस नहीं था. और अगेन जो आप भी हर एक सेशन में बोलते हो तो वो अगेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि डू नॉट, पहले आपका प्राइम जो गोल है इट हैज टू बी सुपर क्लियर दैट यू आर देयर टू हेल्प पीपल. Yeah. So I always show up whenever I create my post. I always say that I love people, people love me. So ये कोचेथॉन में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था. So I use it. और कंसिस्टेंसी समथिंग विच आई एम स्टिल फॉलोइंग. और ये मेरा अभी हमेशा से रहेगा. अगेन वो बैम्बू ट्री मुझे हमेशा याद रहता है कि जब कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा होता है कई बार कंसिस्टेंसी जो कंसिस्टेंट क्लाइंट का इशू है वो इनिशियली आपको आएगा, वो मुझे भी आ रहा है, बट उसके लिए मुझे क्या करना है उस पर मैं काम कर रही हूँ, ना कि नहीं आ रहे तो मैंने गिव अप करके छोड़ दिया. सो कंसिस्टेंसी समथिंग आई एम फॉलोइंग सिंस डे वन. और कोचेथॉन इज ऑल्सो 30 days कोच कैसे डालूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट दैट कोचेथॉन पुट मी इन दैट चैलेंज. और मैं विदाउट एनी हसल कहीं से वो पोस्ट मुझे आ रहा था, कोई थॉट आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कभी मैं अपनी टू डू लिस्ट डाल रही हूँ, कभी मैं अपना मास्टरमाइंड जो मीटिंग्स हमारी थर्सडे को होती है मैं वो डाल रही हूँ लोगों को, और वो भी उन्हें पसंद आ रही है. तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, शायद आपको भी यकीन ना है, विद इन लेस देन 3 months आई हैव 8,000 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक. Oh wow, so within 3 months you यस 8,000 फॉलोअर ऑन फेसबुक. मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था, बट ठीक है वो क्लाइंट में कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे वो तो मेरा बात का बोल था ना. पहले तो आई दिस इज माय वन ऑफ द अफर्मेशन दैट आई एम हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ठीक है, आई एम इम्पैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइफ एंड आई कैन सी दैट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें ऑनलाइन कोचिंग में मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ कोचिंग दे रही हूँ. दैट इज, तो ये पूरा एफर्मेशन आपको यही सिखाता है कि आपको उस एनर्जी में आ जाना है. यू डू नॉट नीड टू वेट टू हैव दोस 1,000 क्लाइंट्स. ठीक है, बी इन दैट एनर्जी टुडे. सो वो मुझे बहुत हेल्प करता है. व्हेनेवर तो मैं मास्टर वो वेबिनार्स नहीं ले पाती, या मैं वेबिनार मास्टर क्लासेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं लाइव जाती हूँ. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने 8,000 लोगों से लाइव मिलूंगी हफ्ते में एक बार विद वन टॉपिक. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, कि जो मेरे लिए फिजिबल है मैं वो करती हूँ, रादर कि कोई दूसरा मुझे रोड मैप बना के दे, क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन चैलेंजेस, बट आई विल नॉट मेक इट अ हसल और हडल फॉर मी. तो वो मैंने ऐसे करके आई स्टार्टेड, और आई एम रियली इंजॉइंग दैट. लाइव जाती हूँ, इतने सारे लोग आते हैं, बाद में फिर रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, उस पर मैं 4,500 व्यूज हो जाते हैं. तो आई फील सो गुड. और अगैन मेरे हस्बैंड सबसे पहले व्यूअर होते हैं हमेशा, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए. तो इट्स रियली फन. और ये अगेन मैंने बताना आपको भूल गई कि एक और चीज थी कि मुझे साइड हसल तो करनी थी, बट व्हेन यू वर शेयरिंग इन योर वेबिनार की मैं आई वाज आल्सो स्टक इन 9 to 5 बहुत ज्यादा. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड देन माई फैमिली. ठीक है, उससे ज्यादा हम सोच नहीं पाते थे. सो दिस वाज आल्सो वेरी ट्रू. आई वुड से कि बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि ये भी तो मुझे भी तो चाहिए. आई रियली डू नॉट वांट टू डाई विद दिस कि मुझे कोई तीसरा बंदा जानता ही नहीं है. so true. एंड यू वेक अप विद सो मेनी गुड मैसेजेस एंड दिस इज अ ब्लेस्ड मनी, कि हम आपको पैसे भी दे रहे हैं और आपको इतनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं. ये शायद डॉक्टर के बाद सेकंड प्रोफेशन होता है व्हेन यू गेट ब्लेस्ड मनी. So तो इट्स दैट अमेजिंग, और दैट ट्रिगर्ड मी सो हार्ड कि मुझे भी ट्राई करना है. आई कैन आई विविडली रिमेंबर, मैं जब अपनी डायरी में, जब आपने कहा था नई डायरी लेना, नया पेन लेना, तो उसमें जब मैंने मेंशन किया कोच, सो माय हैंड वाज शेकिंग. कोच. सो यू टोल्ड यू ऑलवेज सेज कि बी इन दैट एनर्जी टुडे, बी इन दैट एनर्जी टुडे. तो मुझे वो लिखने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा था. और नाउ आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस कोच, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट ऑल माय पोस्ट. सब जगह जाता है तो वो फिर अपने आप ही यू हैव दैट हैड. wow, beautiful. So tell us, Preeti, it's very inspiring what you shared just now. Each and every word is like worth listening, whosoever is listening. And so now, yeah. So now tell me, how was your first client experience, clarity call? How prepared were you? Were you scared or were you confident? Did you follow the script that I gave you for the clarity call? कैसे convert किया? क्या tips help की आपको जो आपने सीखी through coachathon or anything? And then second clarity call and the third. So what helped you? What structure? यस तो मेरा पहला क्लैरिटी कॉल तो अच्छा गया था, क्योंकि मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला उससे क्लाइंट से, और ही वाज सो हैप्पी. बट उसने मुझे मेरा प्रोग्राम लिया नहीं. मैंने एक दो बार ट्राई किया थोड़ा सा फीडबैक जैसे लेने का, बट वो नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया. बट आई वाज सो कॉन्शियस, जैसे आप कहते हो ना कि इफ यू बी सीरियस अबाउट योर बिजनेस देन योर बिजनेस वुड आल्सो बी सीरियस अबाउट यू. तो वो मैं अगेन डे वन से आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम टॉकिंग टू माय बिजनेस.
यू नो एवरी डे इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी, यू ऑलवेज से दिस. तो वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट अगेन सिंपल बट पावरफुल, तो आई ऑलवेज कीप दोस थिंग्स विद मी. तो सेकंड पे आई वाज विजिलेंट कि मुझे कुछ अच्छा करना है, बिकॉज मैं बड़ी मेहनत से ला रही हूँ, ये सारे ऑर्गेनिक है, मुझे एक भी ऐसे वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आई माइट नॉट बी एबल टू कन्वे. बिकॉज आपने क्वेश्चन में ये भी बताया था कि आप कभी भी सामने वाले को मत वो ब्लेम करो कि वो उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, मे बी यू आर मिसिंग आउट समवेयर, तो ट्राई टू वर्क ऑन दैट. देन आई टॉक टू शुभा. शुभा हेल्प मी अलॉट, वेर इन शी टोल्ड मी कि आप ना कुछ इनर वर्क करो पहले जाने से पहले, एंड नेवर बी इन दैट लीडिंग चेयर की आई एम गोइंग टू क्रैक दिस. देन आई चेंज द कॉन्सेप्ट, अपनी थॉट ही चेंज कर दी. वेनेवर आई गो फॉर क्लैरिटी कॉल, तो सारे क्लैरिटी कॉल मुझे भी फेसबुक से ही मिल रहे हैं, इंस्टा पे मिले हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं. फेसबुक इज अगेन बहुत मेरा पावरफुल, मैं सारा फोकस अपनी एनर्जी भी वहीं लगा रही हूँ. तो उसमें पहला वाला मिस हो गया. सेकंड वाले में मैंने फिर प्लान किया मेडिटेशन. सो दैट गिव मी एन आइडिया कि यूट्यूब पे भी मुझे जाना है, मुझे हीलर का भी सर्टिफिकेशन चाहिए था. तो जितनी भी, जैसे कोई बोले मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, सो आई हैव रिकॉर्डेड कस्टमाइज इन माई वॉइस विद लाइट म्यूजिक, इंस्पायरिंग म्यूजिक, दैट मेडिटेशन. और मैं क्लैरिटी कॉल फॉर्म से पता कर लेती थी इसको ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मुझे उसको सेंटर्ड करना है, अलाइंड करना है, ताकि वो उस एनर्जी में आए. तो before I start my clarity call, I always say that I'm just a channel. I'm just a channel to pass on the energy of universe to the people around. तो मैं ऐसे करके अपने को ग्राउंडेड करती हूँ. उसके बाद आई डू होपोनोपोनो एंड टू कीप माई सेल्फ सेंटर्ड एंड फोकस्ड. एंड फिर मैं कोच वाला जो सुश ने सिखाया है, ठीक है, ये सेंटर्ड, ओपन, हैंड होल्ड, कनेक्ट, आई डू दैट. ये मैं अपने सेशन से पहले भी करती हूँ, और मैं क्लैरिटी कॉल के लिए जाती हूँ तब भी करती हूँ, ताकि वो लोग मेरे में वो कोच का पर्सोना देखें. एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी. मैं बिल्कुल, मेरे को कुछ और तीसरी थॉट ही नहीं आती. आई एम जस्ट फोकस ऑन दैट कॉन्वर्सेशन ओनली. तो ऐसे करके वन क्लाइंट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. सो एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग विद 5 क्लाइंट्स. उसमें से एक क्लाइंट इज कन्वर्टिंग फॉर लेवल 2. सो लेवल 1 का इज अगेन ऑल राइज एंड शाइन. ठीक है, राइज एंड शाइन था अगेन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट यू आर, हीलिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द प्रोडक्ट, जो उसको मैं माइंडसेट मास्टरी प्रोग्राम बोलती हूँ. उसमें अगेन जैसे ही वो सामने वाले, वो अगेन मैंने वो पूरा आपका जो डिस्कवरी कॉल का था वो उसको अच्छे से सुना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए. फिर मैं मेडिटेशन पहले कराती हूँ, अपना इनर वर्क भी करती हूँ. सामने वाले को सुनना है, अपनी खाली अपनी थॉट में नहीं रहना. सो आई वाज जस्ट यू नो, चाहे वो कन्वर्ट होना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. अगेन माय फर्स्ट पर्पस इज टू हेल्प दैट पर्सन. सो आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू दैट पर्सन, जो भी वो प्रॉब्लम मुझे बता रहा है, और मैं दिल से उसको कहती हूँ आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू. सो दैट्स हाउ आई डू. फिर फाइनेंस वाली ज्यादातर में जो फाइनेंशियल अबंडेंस की है, वो मेडिटेशन सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, ताकि थोड़ा पर्सन अपने उसमें आए कि यस वो इन्वेस्टमेंट, ये इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट. देन आई ऑल्सो टेल देम कि ये पूरा प्रोग्राम मैंने इतने में सीखा है, एंड आई ऑल्सो यू नो ब्रोक माई FD just to do that, or this is life changing thing, or this is the best investment I ever made on my life, and you would also feel the same. कि mark my words that this is the best ever investment. ये वर्ड मैं हमेशा यूज करती हूँ अपनी स्टेटमेंट में. और अगेन नहीं होती क्लियर क्लैरिटी कॉल, तो जैसे सुश ने बोला कि जस्ट ब्लेस दैट पर्सन, एक बार ही 2 बार फॉलो करो, फिर अपना छोड़ दो. बट यस, नाउ ही इज इन योर एनर्जी कंटेनर. तो जो भी कोई अच्छी पोस्ट होती है, सक्सेस स्टोरी होती है, मैसेजेस होती है, आई यूज टू शेयर विद दैट पर्सन. So these are a couple of things I always do. Inner work is super important before you show up on social media, before you go for clarity call, before you start your coaching session. So I always do that. Beautiful. Exactly. That's what we teach. Your inner work, your own transformation is what people are seeing, and that energy you will be passing, and you are implementing it word by word. Super impressed, Preeti. And and I already know your clients are seeing huge transformation in themselves. The result that you are giving, the testimonials that you are getting from them. How does it make you feel now? From a 9 to 5 job to now a coach, people are talking, saying, "Ma'am, you changed my life," and they are manifesting crazy results. So how does that make you feel? सुपर अमेजिंग. अगेन इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. ये सब चीजें शायद मैं अपने प्रोग्राम को ऐसे बोलती हूँ कि इट्स अ 10 year सक्सेस इन जस्ट 1 year. तो मुझे भी ऐसे लगता है इट्स अ 10 year सक्सेस इन जस्ट 1 year. व्हेन आई वो हॉल ऑफ फेम का मैसेज आया शुश के पास से, तो आई वाज जस्ट मेरे को आई रियली एंजॉय दैट होल थिंग. मैं 2-3 बार पढ़ा उसको मैंने. सो इट वाज अगेन अचीवमेंट फॉर मी. जो मैं दिसंबर में प्लान करी थी वो मैं अब, और सो जो टेस्टिमोनियल्स मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स बीन हार्डली 2 months. तो अभी एक और ड्यू है. मुझे था पहले ये वाला अच्छे से, पहले मैं इसको एड की तरह सब जगह रन करूँ. सेकंड इज ऑलरेडी रेडी. तो उसके बाद मैं ये वाला भी लेके आऊंगी. एंड अगेन अभी थोड़े से क्लाइंट है, बट थोड़े हुए हैं, ज्यादा हूँ. दिस इज माई एसेट. मैं हर एक क्लाइंट पे आई वांट टू गिव देम, जैसे आप, दिस होल प्रोग्राम इज नॉट अबाउट की कोचिंग सिखा दी और आपको छोड़ दिया. इट इज नॉट अबाउट दैट. इस पूरे प्रोग्राम में अभी हमें कंप्लीट करे हुए 2 महीने हो गए, बट वी आर स्टिल विद पार्ट ऑफ योर फैमिली, थ्रू कोचिंग, थ्रू लाइव सेशंस,
सो आई ऑल्सो लर्न दिस फ्रॉम योर लर्निंग्स कि आप अपने क्लाइंट्स को हैंड होल्ड करो. तो मैं हमेशा आई एम जस्ट कॉल अवे फ्रॉम देम. उनको मैं अपना जब भी वो वॉइस मैसेज भेज दिया या उनसे जब भी उन्हें हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. और मैंने अपने जो लेवल 2 जिसको मैं 360 डिग्री ग्रोथ बोलती हूँ, तो उसमें भी मैंने क्या नाम है, अपने सारा जो भी सीखा है सब कुछ डाल दिया. मैंने कहा आई एम एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम दिस थिंग, तो लेट मी पुट एवरीथिंग हियर. तो हाँ, सो इट इज सुपर अमेजिंग जर्नी. और वो मैसेजेस, इतने सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए, तो जब भी मैं लो फील करती हूँ तो दिस इज माय गो टू कि मैं अपनी लेट मी काउंट माय ब्लेसिंग्स. और वो सारे मैसेजेस मैंने एक फीडबैक करके फोल्डर बना रखा है. आई ऑलवेज गो थ्रू दोस मैसेजेस की सी दैट कीप्स मी मोटिवेटेड. So powerful, Preeti, and I'm so blessed to have you to have you attracted as my student. Exactly, I want students like you. That is my manifestation, that you came into my energy, because a student is the one who walks the talk, who does the work, inner work, follow the coach, follow the process, and take actions. And you, that's what is giving you success. And I bless you with more and more and more success. So, and everyone who's listening to this, anyone who's looking for, you know, growth and peak performance in their life, what would you like to say, Preeti, to them, and how you can help them? So, in a very short statement, I would say कि if I can do, everybody can do. ये मैंने हॉल ऑफ फेम में भी हर किसी के मुंह से सुना. Now I am saying by my heart, 9 to 5 job, having 2 demanding kids, 2 साल के मेरे दोनों बच्चे हैं, and they're super naughty. And again, मेरे husband बहुत supportive है. This is again a blessing. And you will also get supportive people. It's just that you have to take that lead. अगर आपको कोचिंग नहीं भी करनी है, I think you should go for this program. Or it will going to be life changing. Again, maybe it's a premium program. I would say this. मैं इस किसी को वो नहीं कहना चाहती, but at the same time, it is worth investing. आप बाहर ट्रैवल करते हो, कभी एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हो, एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हो, सो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में नेवर एवर हेजिटेट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गिफ्ट योर सेल्फ. तो आई एम सुपर बिलीवर ऑफ सेल्फ लव. और दैट्स हाउ आई लव माई सेल्फ, गिफ्टिंग सो मेनी गुड थिंग्स, सो मेनी लर्निंग्स. इतनी सॉर्टेड हो जाएगी लाइफ. मतलब जब EFT मतलब इतने व्हेन शिल्पा सेज की बैकपैक है आपके पास, उसमें से निकालो कौन सा आपको भी यूज करना है. दैट्स हाउ. जब मैं ऐसा नहीं है कि आई एम लाइक अ महात्मा राइट नाउ आफ्टर डूइंग दिस होल प्रोग्राम. वो थॉट्स आपको आएगी. यू आर इन अ वर्ल्ड ऑफ पीपल, आपको इम्पैक्ट करेंगी चीजें, बट यू नो हाउ टू डील विद देम. एंड दिस इज द ब्यूटी. This is the beauty. I think you should, whosoever is watching this interview, just go for it. This is, I would highly recommend. This will take you from victim zone to take the charge of your life zone. Wow, Yes. so powerful. Best way to end this session. Thank you so much, Preeti. God bless you. Thank you